Yeah, I'll do that. Good afternoon, friends, and welcome to this press conference. Kindly settle down, please. People at that side, back. Friends, the Ministry of Petroleum and Natural Gas has been taking innovative strides to bring its various services to the doorsteps of the people at the grassroots level in a very successful manner. To name only a few, Ujjwala, Pahal, Give It Up, these have been a tremendous success. The ministry has yet again come up with another special social media platform called MOPNG eSeva. It's our great pleasure and privilege to have with us the Honorable Minister of State for Petroleum and Natural Gas, Shri Dharmendra Pradhanji, who will inaugurate this special service today. I extend a warm welcome to you, sir. I also welcome Shri K.D. Tripathi ji, Secretary of the Ministry, Shri A.P. Sahani, Additional Secretary, and Shri Ashutosh Jindal, JS Marketing. Friends, first JS will briefly explain to you what is eSeva. Thereafter, the Honorable Minister will address you and we will then take questions from you. As usual, please follow the points of order. And I also request you to keep your mobile telephones on a switch off or a silent mode. Over to the Joint Secretary, please. Thank you, sir. Good afternoon. Namaskar. Very briefly, let me mention about MOPNG eSeva. So MOPNG eSeva is an integrated platform, social media platform. Friends, I think all of you are aware, currently there are multiple platforms in social media, both on Twitter and Facebook, where people availing services of our ministry, our oil marketing companies, or the oil CPSEs can register the grievance, raise queries. मंत्री जी का ट्विटर हैंडल है, मंत्री जी का फेसबुक पेज है, मिनिस्ट्री का फेसबुक पेज है, रिस्पेक्टिव कंपनीज का ट्विटर हैंडल है, फेसबुक पेज है. So this effort, MOPNG eSeva, is an effort to integrate all these platforms into a single point integrated platform. So this MOPNG eSeva from today will be the single point of contact for anybody who wants to contact the Petroleum Ministry or the various companies which work under the Ministry of Petroleum. अभी हम ये सेवा, we are starting this service on Facebook and Twitter and we'll slowly extend it to other social media platforms. Friends, I may mention here, we are setting up a virtual war room for managing all these grievances on 24/7 basis. We have already identified people from all the respective stakeholders, mostly the oil marketing companies, the CGD companies. I may also mention that we have had a pilot launch of this service about 7 to 10 days back. We have already redressed, we have already resolved about 100 grievances in these 7 to 8 days. We have received very encouraging response from the consumers, and most of these 100 grievances have been resolved within 48 hours. So the focus of this service is, one, provide single point service to the citizens of the country, the consumers who want to contact us, provide a quick resolution, and in case somebody wants to write to us, to the minister, to the ministry, provide a platform for sharing those thoughts, grievances, queries, and we are actually receiving a large number of suggestions also. Finally, I may mention that this is a platform for all kinds of grievances. So it's not only marketing, not only retail, not only LPG, it's city gas, PNG, CNG, and all related grievances. We would try to integrate into this one portal. Thank you very much. Yeah. Thank you, Jindalji. Now I request the Honorable Minister to inaugurate this special service. थोड़ा उनको भी देखना.
जैसे आशुतोष जी ने कहा कि पहले से ही हमारी मिनिस्ट्री के अंदर जो पीएसयूज है, मिनिस्ट्री की अपने ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, फेसबुक पेज है, या मेरे निजी जो फेसबुक हैंडल और ट्विटर हैंडल है, इन सब में हम ग्राहकों की आपत्ति को सुनते थे। मित्रों, हमारी विभाग में प्रतिदिन 3.5 करोड़ ग्राहक विभिन्न एनर्जी को खरीदने के लिए आते हैं। मुख्यतः पेट्रोल, डीजल, पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी, किरोसिन ऑयल भी लेने के लिए आते हैं। बाकी अन्य प्रोडक्ट एटीएफ टाइप के हैं, लेकिन मूलतः ये जो 5 कमोडिटी पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल और डीजल, इसको खरीदने के लिए प्रतिदिन 3.5 करोड़ ग्राहक शायद कोई भी रिटेल चेन पे, जो ऑर्गेनाइज रिटेल चेन है या विंडो है या सर्विस कहिए, बैंकिंग सर्विस है, रेलवे सर्विस है, इन सर्विसों से काफी ज्यादा ये प्रोडक्ट की सर्विसेज है। स्वाभाविक, जब इतने बड़े ग्राहक समूह आएंगे, हमारी सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी सरकार की कल्पना है, ग्राहक एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी है। ये सारे कार्यक्रम, सारे एक्टिविटीज की केंद्रस्थ ग्राहक है। ग्राहक की सुविधा ये हमारे लिए सर्वोपरि है। और आज के दिनों में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा माध्यम बना है ग्राहक सेवा में काफी इंप्रूव करने के लिए। इसलिए हमारी मिनिस्ट्री की सारे स्टेक होल्डर्स की एक कलेक्टिव इफोर्ट है। ये MOPNG ई सेवा के नाम पे आज हम एक ट्विटर हैंडल और एक फेसबुक पेज भी आ रहा है, ये दोनों शुरू करके हम ग्राहक को उसकी रोजमर्रे की समस्या को समाधान करने के लिए 24/7, और इसको पहले से हम लोग कर रहे थे और पिछले 7-8 दिनों में उसकी एक हमने पायलट रन भी किया है। मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर हम अपने ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को पुख्ता कर पाए हैं, यह हम विनम्रता के साथ आपके सामने रखना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से देशवासियों को इस विषय में आपकी मदद से इसकी जानकारी बढ़े। आप लोग भी अपने न्यूज़ एजेंसी या आपकी निजी जो हैंडल और फेसबुक, आप भी, मैं आपकी कईयों की हैंडल और फेसबुक को भी ट्रैक करता हूं, तो अपने आप में भी आप लोगों की बड़ी उपस्थिति है। सारे आप लोग हमारे बीट के भी हो, और आप लोगों की मदद से और आप लोगों की एजेंसीज की मदद से हम चाहते हैं भारत के नागरिकों को हम ये एक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की कल्याणकारी सरकार की एक जन सुविधा की उपक्रम आज हमने लोकार्पित किया। हमारी ओर से इतना कहना था इस संबंध में, या और बाकी हमारी सेक्टर की इन दिनों में और एक विषय में आपको सहर्ष सूचित करना चाहूँगा। अभी अभी देश के अंदर एक प्रकार से एक बहुत बड़ा जनमत की प्रतिफलन हुई है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को एक बहुत बड़ा स्वीकृति मिली है। उत्तराखंड में और बाकी 3 राज्यों में उसकी काफ़ी कंसोलिडेशन हुई है। मित्रों, मैं आप लोगों को आभार प्रकट करता हूँ, आप सबने जिन्होंने उत्तर प्रदेश से दौरे में गए थे और जाके वहाँ जमीन पे घूम के आए, सबने हमारी मिनिस्ट्री की एक कल्याणकारी योजना के बारे में आपने स्वयं देख के आया, और ये हमारे लिए सुखद अनुभूति थी। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन में एक
घोषणा किया था, हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी। और पिछले हमारी सरकार को 3 साल होना भी अभी बाकी है। हमने पिछले दिनों में जिस ढंग से, पिछले 11 महीने में जिस ढंग से हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन देश भर में हुई है, गरीबों के अंदर सरकार के प्रति एक नई आस्था जगी है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अगर हमने कहा था सबकी साथ सबकी विकास, हमने किसी लाभार्थी की जाति, उसकी धर्म, उसकी गांव, इसको हमने पैमाना नहीं माना था। उसकी आर्थिक स्थिति और उसकी आवश्यकता और उसकी सरकारी जो जानकारी 2-3 चाहिए, बैंक अकाउंट, आधार नंबर, ये सब जो मौलिक जानकारी की आवश्यकता थी, वो जो कंप्लाई करता था उसको अभी तक लगभग हम लोग चंद दिनों में, मैं फिर आप लोगों को कुछ दिनों के बाद चाय के लिए बुलाऊंगा, जब हम 2 करोड़ पूरा करेंगे। चंद दिनों में हम 2 करोड़ पूरा ही करने वाले हैं। मित्रों, ये भी एक सूचना आप लोगों को देना था। बाकी हमारी क्वेश्चन के लिए ओपन है, और ओपन में मैं हमारी इन दिनों में इंडस्ट्री की कुछ इनिशिएटिव के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर। या विल स्टार्ट विथ यू। जल्दी 2 करोड़ पूरा हो जाएगा। 3 साल में 5 करोड़ का प्रोग्राम था, मगर यदि इतनी रफ्तार है तो क्या जो नया वित्त वर्ष होने वाला है इसमें ही उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं? और उज्ज्वला से अलग भी 5 करोड़ देने वाले थे, उसमें से कितना दिया गया है? देखो, अगर हम पिछले प्रतिवर्ष जब उज्ज्वला नहीं आई थी, तब अमूमन 1 करोड़, हम तो जब आए थे उस समय में 1 करोड़ भी नहीं था, 1 करोड़ के नीचे एलपीजी कनेक्शन होती थी। इसी साल 3 करोड़ 16 लाख आज की डेट में उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन हुई है। उसमें से 1 करोड़ 81 लाख या 85 लाख तक गया होगा उज्ज्वला। बाकी 1 करोड़ 30 लाख कहिए नॉन उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन भी बढ़ी है। एपीएल कैटेगरी के लोगों को, नॉन एससीसी कैटेगरी लोगों ने एलपीजी कनेक्शन लिया है। इसलिए एलपीजी पेनिट्रेशन की अभी तक का सबसे हाईएस्ट एवर नंबर 1 साल के कनेक्शन की ये हुई है, 3 करोड़ 16 लाख। अभी फिर भी और 1 हफ्ता इस फाइनेंशियल ईयर की बाकी है। अभी तो हमारी परफॉर्मेंस पे आप खुद ही टारगेट बना लीजिए। टारगेट तो सरकार ने हमको, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 करोड़ की दिया है गरीबों के लिए। और हमारी जो एक लक्ष्य था, हम जब हम लोग आए थे 14 करोड़ कनेक्शन था एक्टिव कंज्यूमर। हम जब मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तब देश में 14 करोड़ एक्टिव एलपीजी कंज्यूमर थे, जो आज के दिनों में 19 करोड़ 70 लाख 80 लाख 19 करोड़ 80 लाख हो चुका है। यानी ये लगभग 5 करोड़ 80 लाख पिछले 2.5-3 सालों में हमने बनाया, उपलब्धि किया है। 3 साल के भीतर भीतर ये पेनिट्रेशन अभी 71% हो चुका है। भारत की हाउस होल्ड की आज के दिनों में 71% पे हम एलपीजी कनेक्शन पहुंचाए हैं। उज्ज्वला, नॉन उज्ज्वला दोनों की दृष्टि से। इसलिए पिछले हमारी सरकार की एलपीजी पेनिट्रेशन में भारत के घरों में महिलाओं को सुविधा देने के लिए जिस ढंग से हमने पेमेंट गेटवे बनाया, पहल जिसके नाम हमने कहा, सफलता के साथ एलपीजी की सब्सिडी को, इन दिनों में मैं पार्लियामेंट में कुछ पत्रकार मित्रों से चर्चा कर रहा था। मैंने कहा अगर सच में जो 86 रुपीस की कुछ मित्रों की ऐसे क्यों बढ़ाया, एक से आपत्ति आ, तो गरीबों के लिए तो नहीं बढ़ा था, क्योंकि 2 दिन के बाद शायद वो बाजार दर पे खरीदा होगा, बढ़ती हुई दाम पे खरीदा होगा, लेकिन 2 दिन के बाद उसके घर में जब सब्सिडी लौटा, बढ़ी हुई सब्सिडी पहुंचा। इसीलिए किसी पत्रकार बहन ने ही कहा कि हाँ, मेरे को पहले खरीदते हुए लगा कि 700 रुपया कैसे हो गया, लेकिन फिर दूसरे तीसरे दिन मेरे अकाउंट में 303 रुपया की सब्सिडी आ गई। तो मैं अस्वस्थ रहा कि उसमें मेरे कोई, ये टेक्नोलॉजी हमको एक मौका दिया। इसलिए हमने पहल, गिव इट अप और उज्ज्वला और ओवरऑल एलपीजी पेनिट्रेशन,
इस सरकार की एक बहुत बड़ा उपलब्धि एलपीजी पेनिट्रेशन के ऊपर हुई है। सर, आप उज्ज्वला और नॉन उज्ज्वला का जो टारगेट है उस हिसाब से तो कमिंग फाइनेंशियल ईयर में ही पूरा होने की उम्मीद है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपको एलपीजी पूरा जो कस्टमर है और एलपीजी मार्केट है उसके लिए? देखिए, आज एक अखबार में एक आई है न्यूज़, भूरेलाल जी की और सुनीता नारायण जी की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में फ्यूल ऑयल, अगर आप नेक्स्ट टारगेट क्या कहें तो जहां जहां हीट इंपैक्ट है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, कन्वेंशनल इंडस्ट्री में, मीडियम इंडस्ट्री में, जहां जहां हीट की आवश्यकता है, ये सब प्रदूषित ईंधन से चलती है। हम योजना बना रहे हैं जहां जहां भी हीट इंटरवेंशन है वहां एलपीजी के थ्रू हो। एलपीजी सस्ता है बहुत इलाका में, और एलपीजी क्लीन है, प्रदूषण रहित है। एनर्जी वॉल में एलपीजी को एक बहुत बड़ा ईंधन करके यूज करना, ये तो हम डोमेस्टिक कुकिंग फ्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। आपके जितने सारे फूड प्रोसेसिंग, दिल्ली की ये ब्रेड की इंडस्ट्री कैसे चलती है, ये दूध की रिलेटेड जितने मिठाई की दुकानें कैसे चलती है, डीजल से ही चलती है। सारे जो नमकीन की दुनिया है उसकी भाटी कहां से चलती है, ये सारे में एलपीजी रिप्लेस हो सकता है। और तेजी से हम, हमारी कंपनियां, तीनों कंपनियां उसकी योजना बना रहे हैं। जहां जहां भी हीट इंडक्शन की स्कोप है वो एलपीजी आधारित हो, इसकी हम कोशिश करेंगे। मंत्री जी, 5 करोड़ का टारगेट आप लोग पूरा करेंगे। एलपीजी हम यहाँ दिल्ली, मुंबई, बड़े महानगरों में, शहरों में इसकी वितरण व्यवस्था ठीक है, लेकिन जो उज्ज्वला योजना से आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लाभान्वित हुए हैं उन लोगों को एलपीजी बुक करने में जो दिक्कत आती है और उनको जो वितरण की समस्या आ रही है, वो इसका प्रयोग कैसे करेंगे? आप थोड़ा कम से कम आप खुद इसको, मैं आपको विनम्र अनुरोध करूंगा, आप थोड़ा 3 दिन, ज़्यादा नहीं, 3 दिन उसकी थोड़ा खुद आप दिल्ली में बैठ के भारत की, गांव की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को कृपा पूर्वक अंडरएस्टिमेट मत करिए। मैं आपको इस जवाब का 3 दिन के बाद दूंगा। आप खुद इसको 3 दिन ट्रैक करिए, आप देखिएगा कहां से आपत्ति आ रहा है। हमारे ये अनुभव है, भारत की सामान्य पृष्ठभूमि से लोग उस पर आपत्ति करते हैं, अपनी भाषा पे आपत्ति करते हैं, उसको रिड्रेसल करने के हमने मैकेनिज्म खड़ा करके रखा है। हमारे इन दिनों में आपने देखा होगा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की सारे कम्युनिकेशन बहु भाषा में होती है, हिंदी इंग्लिश के अलावा भारत की जो बाकी 11-12 भाषा है, उर्दू से लेके मलयाली तक, गुजरात से लेके मणिपुरी तक, ये सारे भाषा में हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। दुनिया नीचे खूब बदल चुकी है भाई साहब। अच्छा सर, आपने पिछली बार कहा था, पिछली बार सीधे नहीं, कुछ दिन पहले, कि हम ग्रामीण इलाकों में डोर स्टेप सर्विस, होम डिलीवरी के लिए कुछ शुल्क लगा के उसके एक मॉडल को विकसित कर रहे हैं। उस मॉडल में सर कुछ कंक्रीट हुआ? नहीं, शुल्क लगाना नहीं, निःशुल्क भी हम मॉडल डेवलप किए हैं। होम डिलीवरी होगा। अच्छा, जैसे जो जंगली इलाके हैं, मोटा मोटी आदिवासी हमने इलाके, हाँ। रूरल अर्बन के पहले कोई विधेयक था, हमने अभी कहा कि होम डिलीवरी होगा। यह हमारी नीति बनी है। दुर्गम इलाका की कुछ केंद्र में होम डिलीवरी नहीं होगा, लेकिन बाकी मोटा मोटी होम डिलीवरी ये मैंडेटरी हमने किया है। हाँ, कोई रूरल अर्बन, रूरल कोई कम आदमी है क्या? Any more questions, please? That side. इसके बाद करें, 1 मिनट। सर, मैं ये जानना चाहती थी, इस तरफ से। जो राजस्थान एरिया है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, उसमें उज्ज्वला के कुल कितने कनेक्शन मिले हैं, जो है उसके थोड़े आंकड़े बताएंगे? निकालो भाई, मैं भी निकालता हूँ। राजस्थान की झुंझुनू, हाँ नहीं, झुंझुनू। हम और कोई पूछ सकता है, हम उसको 2 सेकंड में देते हैं आपको। Yeah, please give it. सर, मुझे कोरबा के सांसद महोदय ने बताया कि बाणादीप से पाइपलाइन कोरबा तक आ चुकी है और प्रोडक्ट की तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इसकी इनॉग्रेशन कब करने वाले, ऐसा कुछ तय किया? जगह जगह पे थोड़ा मिसिंग लिंक है, वो हो रहा है, हो जाएगा, अभी महीने 2 महीने में हो जाएगा। So there's been
321 18,321 LPG connection opportunity from issue. So there's been many reports suggesting that oil ministry has sought report on integration of oil majors. So are you targeting next financial year? ये हमने उसको कह भी चुका है कि हमने अगर वो लोग इसी फाइनेंशियल ईयर में अपना स्ट्रैटेजी करके ले आएंगे हमारी कोई आपत्ति नहीं, इस फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। माने इस फाइनेंशियल ईयर नहीं, आप मार्च ये तो नहीं पूछ रहे हैं। Next, that's why I said next. ठीक, स्वाभाविक जब हम नेक्स्ट माने फाइनेंशियल ईयर कह रहे हैं तो स्वाभाविक बजट में अनाउंस हुआ है 2 महीने के लिए, फरवरी 1 की बजट में, मार्च 31 के अंदर के लिए तो नहीं हुआ था ना। डोंट गो टू मच टेक्निकल। सर ये अभी हाल ही में एशिया के 3 कंट्रीज जो हैं, चाइना, जापान और साउथ कोरिया, उन्होंने एक MOU साइन किया है कि LNG इकट्ठे होकर ज्वाइंटली प्रोक्योर किया जाएगा। क्या आने वाले समय में भारत उसका हिस्सा बनेगा उस MOU का? भारत उसको रूल आउट भी नहीं करता है। हम कंज्यूमर सेंट्रिक एनर्जी मार्केट बनेगी। एक समय में प्रोड्यूसिंग सेंट्रिक एनर्जी मार्केट था और आने वाले दिनों में इसे करके आने वाले 50 सालों में हम जो विजुअलाइज कर पा रहे हैं, और एनी रिपोर्ट आप उठा के देखिए, सबकी मत है बायर्स मार्केट इमर्ज कर रहा है। और ये जो 3 देशों के आपने नाम लिया, चाइना, जापान और कोरिया, और चौथा स्वाभाविक नाम भारत आती है, और हम चारों को मिलाएं और सबकी असेसमेंट है कि आने वाले दिनों की एनर्जी की कंजम्पशन की सब्सटेंशियल क्वांटम इसी इलाका में होने वाला है, विशेष करके भारत और चाइना में होने वाला है, और सबसे बड़ा ग्रोथ भारत में होने वाला है। इसलिए एनी काइंड ऑफ कंज्यूमर सेंट्रिक कॉमन स्ट्रैटेजी भारत उसको स्वागत करेगी, भारत उसको देखेगा। हाँ जी, Sir, open acreage licensing policy and national data repository officially कब launch होगा? I think it's in the draft phase right now. नो नो नॉट अ ड्राफ्ट फेज। हम ओपन एक्रेज की पॉलिसी ऑलरेडी हमने जो कैबिनेट में अप्रूवल लेके, जिसको आपको हमने बताया लगभग 6-7 महीना पहले, उन्हें पॉलिसी इज ऑलरेडी देयर। नेशनल डाटा रिपोजिटरी भी तैयार हो चुका है। उसकी एक पब्लिक डेडिकेशन अभी एनी टाइम हम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने अनुरोध किया है कि उनकी देश में पहली बार एक यूनिफाइड डाटा रिपोजिटरी बनने वाला है। डाटा रिपोजिटरी की लोकार्पण के साथ साथ ये ओपन हो जाएगा, इट्स एनी टाइम। या प्लीज। सर, NPA चार्जेस को लेकर बैंक्स एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को शेयर करना है वो चार्जेस, लेकिन कई बैंक्स अभी भी कस्टमर से NPA चार्जेस ले रहे हैं, तो क्या इस पोर्टल पे या इस सर्विस पे उसका भी कंप्लेंट होगा? बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। हम बैंकों तो देखिए, ये क्रेडिट कार्ड में अभी भी चार्जेस रहेगा, ये अभी भी है। बहुत समय में हमने देखा हमारी सर्विस, मैंने हम जो मेरे हैंडल पे आता था, मैंने उसको देखा बहुत जगह पे क्रेडिट कार्ड की चार्जेस को ही यहाँ आपत्ति किया जाता है। डेबिट कार्ड में चार्जेस की एक जो मॉडल हमने लाया है, उसकी लो रेट रहेगा, इसको लाया है। हम इसको स्वीकार करते हैं। इसी का यही उद्देश्य है कि भाई इसको और ट्रांसपेरेंट करने के लिए और एक्सेसिबल करने के लिए। इसी की आपत्ति को फिर हम संबंधित बैंकों को भेजेंगे, उनकी जवाब लेंगे, मार्केटिंग कंपनी उसको स्पेसिफिक उत्तर उसको देना पड़ेगा जो आपत्ति करता रहेगा। सो आपके प्रोग्राम में के बाद आपने कहा, तो उनसे पूछा, मैंने गेल चेयरमैन से पूछा था कि शेल गैस अमेरिका से जो आ रहा है उसका पहला कंटेनर कब आएगा। उन्होंने कहा था कि इस अप्रैल में आएगा। नहीं, इस अप्रैल में नहीं, 18। सर, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जो पारादीप से टैक्स क्लेम कर रहा है वो कितना जस्टिफाइड है, और गवर्नमेंट ऑफ ये आपका क्या सोच है? अभी तो सब जुडिस है। ऑनरेबल हाई कोर्ट उड़ीसा ने उसमें कुछ कहा है। एक हाई पावर कमेटी बनी थी, एक उसको क्या कहते थे हम लोग, एम्पावर्ड कमेटी, क्या 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 कमेटी कहते, एम्पावर्ड कमेटी, वर्किंग ग्रुप। एक वर्किंग ग्रुप हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी MOPNG और वहाँ के चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में बनी है। पहले ही बनी थी, वो चर्चा कर ही रहा था। इन दिनों में उड़ीसा हाई कोर्ट ने भी कुछ ऑब्जर्वेशन दिया है कि एक निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर उस
राज्य सरकार की अपेक्षा और भारत सरकार की कंपनियों की जो अपेक्षा, उस विषय को समाधान करने के लिए हाईकोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिया है। एम्पावर कमेटी वर्किंग कमेटी ग्रुप बैठेगी तो रास्ता निकालेगी उसकी। सबसे ज्यादा किस राज्य में एलपीजी की कनेक्शन लगे? अभी एब्सोल्यूट नंबर में कहे तो शायद यूपी आएगा। सबसे कम? सबसे कम पेनिट्रेशन वाइज कहे तो पूर्ववर्ती राज्य में ज्यादा होगा। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाल, असम, बिहार, ये सब पूर्वी भारत नेग्लेक्टेड था। अमेठी सबसे इस प्रकार के नेग्लेक्टेड जिलों में एक था। बिहार के जहानाबाद जिले में कितने कनेक्शन लगे? बिल्कुल आपको बताएंगे। बताओ भाई, जहानाबाद क्या इंटरव्यू कर रहे हैं? देखो, मैं आपको इसीलिए बताता हूँ, इसलिए हमारे पास एक हमारी इट्स नॉट फॉर पब्लिक कंजम्पशन, हमने एक इंटरनल डिपार्टमेंट में एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हमने किया है, जिसमें हम भारत की जिलेवारी उज्ज्वला के कनेक्शन के हिसाब हम बता पाएंगे आपको। दरखास्त कितने लोग किए, कितने का क्लियर हुआ, कितने को मिला, कितने के घर में पहुंच गया। मैं आपको बताया जहानाबाद का 28,021 28021 आज की डेट में कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। रिफिल के लिए कोई टाइम फ्रेम आप सुनिश्चित करेंगे कि इतने टाइम के अंदर वो रिफिल जो है उसकी सप्लाई हो? देखिए, ये राज्यवारी डिफरेंट करता है। ये राज्य की जो वहां की श्रमिक नीति के ऊपर निर्भर करता है। कुछ जगह पे डबल शिफ्ट होती है, कुछ जगह पे डबल शिफ्ट नहीं होती है, कुछ जगह पे रेस्ट्रिक्टेड बटलिंग होती है, कुछ जगह पे एक ट्रांसपोर्टेशन रेट की एक अलग प्रकार के हिसाब है। वो राज्य राज्य के ऊपर निर्भर करता है। कई राज्यों ने 24 घंटे में उसको ले आया है, कई राज्यों ने उसको 10 दिन का भी अनुभव है। तो कोई मैक्सिमम कैप आप लगाने की कोशिश? भाई, वो हमारे हाथ में नहीं ना। उस राज्य वाले कहेंगे कि ना हमारे वहां 3 शिफ्ट नहीं चलेगा, हमारे वहां ट्रांसपोर्टेशन की फीस इतनी होगी, इतने ट्रक ही डेली लोडिंग हो गए। ये रिलेटेड है ना। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर अंडर योर गवर्नमेंट रूल। हमारी राज्य में बढ़िया चल रहा है। कोऑर्डिनेट हमारी राज्य में आप मेरे को इस प्रकार की, मैं जब भारत सरकार की ओर से कह रहा हूँ, मेरे राज्य और उसे के राज्य मत गिनिए, मैं सबकी चिंता कर रहा हूँ। और बाकी अगर पूछे तो हमारे राज्य में कोई उनको छूट नहीं है कि देरी में देने के लिए। राज्य को परफॉर्मेंस दिखाना ही पड़ेगा। सर, ये छोटे सिलेंडर्स को लेकर पैसों ने एक वो लगा दिया है कि भाई आप उसे बेच नहीं सकते हैं रिटेल शॉप्स पे, तो उस पर कुछ कर रहे हैं सर? अभी देखेंगे, ऐसे कुछ विषय है हमारे सामने, उसको हम देख लेंगे। Thank you. So friends, we'll conclude this press conference. Thank you, sir, for your presence and all the dignitaries on the dais. And